All right. Um, so namaste and good evening, everyone. CMYPDP Dialogue Series में आप सभी का स्वागत है. मेरा नाम है अपूर्वा और आज के सेशन के लिए मैं हूं आपकी होस्ट और मॉडरेटर. हमारे सभी नए दर्शकों को मैं चीफ मिनिस्टर्स यंग प्रोफेशनल्स फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी. CMYPDP गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसका एम यंग प्रोफेशनल्स को प्रदेश के डेवलपमेंट प्रोसेसेस में एंगेज करके ग्रास रूट्स पे सुशासन यानी कि गुड गवर्नेंस को प्रमोट करना है. CMYPDP में हाल में 52 यानी 52 CM फेलोज हैं और प्रत्येक CM फेलो राज्य के 52 में से एक जिले में पदस्थ है. आज के डायलॉग सीरीज के सेशन में हम बात करेंगे करियर्स इन द नॉन फॉर प्रॉफिट सेक्टर के बारे में. And I would like to introduce our guests for today, that is Ms. Kriti Pradhan and Mr. Himanshu Gupta. Kriti is a program manager with the American India Foundation. Over the past 2 years, she has led multiple programs for the foundation in the field of health, education, livelihoods, as well as COVID relief. She is also a part of the government engagement team at AIF. Prior to this, she was a professional in the education sector and taught English literature as a lecturer. Kriti has always had an inclination towards social work and has been a vaccination volunteer at the community level for more than 10 years. Kriti, welcome to the CMYPDP Dialogue Series. Hi Apurva, thank you. I'm so happy to see so many youngsters, and I just recently got to know about this fellowship and the whole idea sounds amazing to me. And I'm looking forward for this conversation. Thank you so much for being with us. Our second guest for today is Mr. Himanshu Gupta. Himanshu is a program manager with the Piramal Foundation. He focuses on designing and implementing scalable solutions using evidence-based approach. Himanshu is the recipient of the 2017 National Youth Award awarded by the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India. Himanshu is an engineer by training, and outside of work, he's a passionate poet, a writer, and a social worker. Himanshu, welcome to the Dialogue Series. Thank you so much, Apurva. And I've started my career with a CM fellowship. So it's always a nostalgia associated with this CM fellowship program, no matter किसी भी state का हो. But thanks for the invitation and looking forward to this interaction. The pleasure is all ours. Just before we start the session, a quick note. ये session bilingual session होगा. So both the participants as well as our guests are welcome to speak या तो English या फिर हिंदी में, whichever language you're comfortable with. The one thing that's common between both of you, Kriti and Himanshu, is that both of you work in the development sector. And the other thing that is common is that neither of you have been trained to be a public policy professional or a development professional by education. So I think पहली चीज जो हम लोग जानना चाहेंगे वो है आपकी story कि what led you to find your passion in the development sector. Himanshu, let's start with you. So sure, आपने एकदम सही कहा कि ये ट्रेनिंग नहीं है, बट कंटेम्पररी आज का सिचुएशन ही ऐसा है. सो लेट्स से आई माइसेल्फ इज अ इंजीनियर बाय एजुकेशन, बट आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स हु आर ट्रेन्ड फॉर द इंजीनियरिंग स्टाफ आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू डू द इंजीनियरिंग. आप किसी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप पे चले जाइए, दे हैव 10 times greater understanding of microprocessors and microcontrollers than an electronics engineer. Same goes for electrical wing. So the thing is कि इंसान के लिए what I thought is कि passion is more important than the competency. Competency over the period of time you can build, but the passion for a particular career is most important. मेरा passion शुरू से स्कूल के टाइम से जो था वो स्पीकिंग में था. I was very much into the literary activities, debate, extemporaries and all.
व्हेन आई डू दिस, यूजुअली मैं हमेशा अगेंस्ट द मोशन का साइड लेता था, मतलब विपक्ष की तरफ से खड़ा होता था। सो जो कन्वेंशनल टॉपिक्स जो मेरे समय पे बन रहे थे उसमें ये था कि बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट टॉपिक होता था, कोई चीज होनी चाहिए, मतलब दहेज प्रथा अच्छी है या नहीं है, तो ये बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट सा टॉपिक था। और उस समय जब ये कहना पड़ता था कि इसके प्रोज एंड कॉन्स पे बात करते हुए, जब आप अदर साइड ऑफ स्टोरी देखते थे तो आपका एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होता है। हमने जो अपने स्कूल में जितने भी डिबेटिंग्स किए हैं उस पे ये निकल के समझ में आया कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर नॉट डूइंग गुड इनफ फॉर द सिटीजन। सो द थॉट इज, वहां से थॉट वो ट्रिगर होना शुरू हुआ कि हम हमेशा क्रिटिसाइज ही करते, पर हम वो कंस्ट्रक्टिविज्म की तरफ कैसे जा पाएंगे, हाउ वी कैन एड ऑन टू द वैल्यू ऑफ गवर्नेंस। एक अच्छी गवर्नमेंट में जो हमें सिविक्स में पढ़ाया जाता है वो सिटीजन पार्टिसिपेशन के बिना अधूरी रहती है। दैट थॉट ट्रिगर्ड इन माई माइंड एंड दैट्स हाउ माई जर्नी स्टार्टेड विद द डेवलपमेंट सेक्टर। उस समय क्या कर सकते थे, तो क्लास 12th में थे, कुछ ज्यादा कुछ ऐसा डेवलपमेंट सेक्टर और ये सब पता नहीं आ सकता था, तो आई स्टार्टेड बाय डूइंग समथिंग इनटू द एजुकेशन फील्ड। सो अभी एक द नाइट्स करके बहुत ही अच्छा गाना है, एबीसी एक सिंगर है उनका, उसका एक लाइन है, वन डे यू विल लीव दिस वर्ल्ड बिहाइंड, सो लिव अ लाइफ यू विल रिमेंबर। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको क्या चीजें याद होती है। मैंने अपने लाइफ में स्कूल लेवल से डिबेटिंग कंपटीशन शुरू किया। आई वॉन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, आई वॉन एट द डिविजनल लेवल, फिर स्टेट लेवल जीता, फिर सोचा इससे बड़ा क्या है तो नेशनल लेवल पे गए, फिर नेशनल से भी बड़ा क्या है तो वो डिबेटिंग में इंटरनेशनल लेवल पे भी गए, तो वो इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल होना था, उसमें भी जीत के आए, काफी सारी चीजें हुई। लेकिन जब मैंने एक अपने घर के पास ही एक स्कूल था जो कि लो इनकम प्राइवेट स्कूल था, वहां पे पढ़ाना शुरू किया, देन आई रियलाइज कि वो चीजें वहां पे जब स्टूडेंट्स के ग्रेड इंप्रूव हुए, दैट इज समथिंग मोर मेमोरेबल टू मी देन द टाइटल्स दैट आई वॉन्ट प्रायर टू दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। सो दैट्स हाउ आई रियलाइज कि मेरे अंदर एक क्वालिटी है, वो है कंपैशन, और वो कंपैशन को मैं कॉम्पिटेंसी और पैशन में ब्रेक करता हूँ। मतलब यू शुड गेन द कॉम्पिटेंसी ऑल्सो एंड यू शुड बी पैशनेट अबाउट इट। तो वो मेरे लिए एक ट्रिगर पॉइंट था। लेटर ऑन आई स्टार्टेड स्टूडेंट लेड इनिशिएटिव कॉल्ड ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन इन जबलपुर। उसको हमने कुछ लोगों के साथ शुरू किया। वी स्टार्टेड विद अ एजुकेशन विंग कॉल्ड ज्ञान दृष्टि, लेटर वी हैव एक्सपेंडेड दिस। हमने अपराजिता नाम से एक वुमेन विंग शुरू किया, यात्रा नाम से एक ट्रैफिक अवेयरनेस विंग शुरू किया, प्रकृति नाम से एक एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी का काम शुरू किया, संस्कृति नाम से कल्चर और लिटरेचर का काम शुरू किया। तो वो एक बड़े प्लेटफॉर्म में जो है वो बिल्ड हुआ। सो ये समझ में आया धीरे धीरे काम करते हुए कि दिस इज समथिंग विच इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू मी। एंड इंसान को जहाँ इंटरेस्ट समझ में आता है वहां पे वो डेफिनेटली अपना करियर ढूंढता है। तो वही चीज जो मुझे अपना इंटरेस्ट एक डेवलपमेंट सेक्टर में समझ में आया, तब तो मुझे डेवलपमेंट सेक्टर की परिभाषा भी नहीं पता थी। मेरे पूरे स्कूल और मेरे कॉलेज में कोई मेरे से पहले कोई डेवलपमेंट प्रोफेशनल भी नहीं रहा। सो आई थॉट कि इसमें करते हैं, और वही वाली बात होती है कि व्हेन यू आर पैशनेट एनफ तो होल यूनिवर्स कंस्पायर्स, आपको वो चैनलाइज मिलती है, एनर्जी मिलती है। पर आई लैंडेड इनटू दिस सीएम फेलोशिप एंड वहां से फिर वो मेरा एक स्कोप जो चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस एसोसिएट प्रोग्राम था हरियाणा गवर्नमेंट का, व्हेन आई जॉइन दैट प्रोग्राम आई गॉट a good understanding of the development sector, and that's how I get into this particular जो डोमेन है सरकार। तो एक शैलेंद्र करके गीतकार थे, उन्होंने बहुत ही अच्छा गाना लिखा था राज कपूर के लिए कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, तो जीना इसी का नाम। सो फॉर मी द लाइफ इज नॉट अ नाउन, इट्स अ वर्ब। यानी कि जीवन एक नाउन हो सकता है और जीना एक वर्ब है। तो आई फोकस मोर ऑन टू द वर्ब एंड हाउ आई कैन कंट्रीब्यूट माई सेल्फ, माई पोटेंशियल एंड माई एनर्जी फॉर द गुड, फॉर द ग्रेटर गुड। दैट ब्रिंग्स मी into this development. Right. Uh, Amazing story. Kriti, what is your story? So I would like to start शुरुआत से. Basically, I, as a child, always used to literally start, sometimes cry जब मैं poor people को देखती थी. I'm that sort of a person.
एंड इन स्कूल आई एम अ कॉन्वेंट स्टूडेंट, तो स्कूल में हम लोगों के हेल्प पेज इंडिया जो है और भी सारे ड्राइव्स होते थे जहाँ पर हमको गरीब बच्चों के लिए यू हैव टू टेक क्लोथ्स फॉर देम, सो उसमें आई यूज्ड टू बी वन ऑफ द वेरी फ्यू स्टूडेंट्स जो बहुत आई यूज्ड टू टेक इट वेरी सीरियसली, I have to do it. फिर वो हमको हेल्प पेज के छोटे छोटे बैचेस मिलते थे, you have done certain things and all. So since then on, I realized later in my life that since then on I want to do something which is a meaningful job, which is a meaningful labor. I don't want to do something which is just about a product, not about if I can do something about a human being and can have a satisfying experience. And a job, every job you have to work 8 hours, you have to work 12 hours. But is that job a meaningful job? So development sector is the only sector jahan par aap meaningful cause driven job karte ho. So you will get tired in every job, but you will have less frustration. You'll be more satisfied at the end of the day because you feel that you are doing this for a greater good, which is very important for me as a person. So then earlier it was school, then I got into community support system ki community mein jaise once I got to know कि हमारे यहाँ anemia की बहुत problem है. So I spoke with few of my friends. I have good doctor circle here as well, and I spoke with them. And मैंने उनसे बात करके, so I said, what can we do? They said the best thing is first thing is कि आप awareness कर सकते हो. You can tell people what is good for them. Majority of the people don't know that. So I created the IEC material myself. मैंने कहा मैं ही presentation एक बना देती हूँ, and we'll go to different school and do that presentation. When I presented this idea, there is an organization called MI. They got to know about it and they said, why don't you use our material? It is okay. And I took permission from them. And I went around doing this for at least 5, 6, 7,000 students in district and got a very good feedback. Simple sessions we did. Then on, I wanted to, help. And then COVID happened. And that is where when I got a chance to do a formal volunteering. I did 3-month volunteering with AIF for COVID relief, which included basically government engagement, then also the requirement at the field, what are the vaccines. Then eventually I joined them. They offered me a job that you are so passionate about it, why don't you formally come and work into the sector? Then I joined it and I started, because COVID was going parallelly, I also started doing other projects, which are local projects. So my first project was around in 860 schools with more than 1.5 lakh students, all government school students. And that's how, this is my journey towards where I am today. Right. So clearly, Himanshu, Kriti, both of you have your motivations for being in the development sector seeded in you right from, आपका school का time when both of you were very, very young. And personal capacities mein, volunteer capacities mein, you between the two of you, you worked in the field of education, women empowerment, health. My next question to both of you is, so it's two questions combined into one. The first is, in your present capacity, in your respective organizations, what are the different hats that both of you wear? Program manager होते हुए क्या अलग-अलग responsibilities होती हैं, काम होते हैं that you guys are responsible for? And second, within your time with the respective organizations, कौन से अलग-अलग projects हैं या sectors हैं development के जिसमें you have worked? If we can have it like brief and quick from the both of you. Kriti, why don't you go first? Yeah, okay. So I would like to start by कि मेरे रोल में, मेरे जॉब के रोल में, when we say project management, it's not only just sitting down and all. इस development sector में, it starts from seeing the problem. What is the problem statement? Okay, आप किस चीज पर काम करना चाहते हो? That is first thing. So you are obviously part of strategizing, which is very exciting. So you will get a chance to strategize, sit and strategize, see the problem,
propose the solution. So you have to strategize, you have to be, learn how to make proposal. You should know how you do budgeting for that project, what permission do you need from government, and what should be your team size, how much time it will take, monitoring and evaluation. So you have to learn almost everything. What is finance? What is communication? What sort of communication you need to do in the project. So I personally started working with a project called Support My School, which is about solid waste management and segregation. And it is about spreading awareness in the students. So for that project, that was my first project, and it was a very big number. It was almost like 860 schools, and it was in 7 blocks. So the first thing was you should also know the kind of people you need to hire, which is very important because you're working in very remote areas. So from hiring to HR, like the HR part, the finance, the communication, the branding, everything is part of it. Branding is also a very important part of the whole thing. So that was my first project. Then I got into a project called Smita, which was with Schneider and Sachin Tendulkar Foundation, in which we took an initiative कि remote areas में या छोटी जगहों पर schools तो है, facilities है, but there is no light and there is no smart class. So we provided solar powered smart classes in 3 states, which is Tamil Nadu, Gujarat and Uttarakhand. यहाँ पे remote location में. And then we thought कि सिर्फ classes set up करने से कुछ नहीं होगा. We need to basically train the teachers, sensitize the headmasters and handhold them to get used to using these smart classes. How they will use it, how they will use PPTs to teach this government school, children. The third project which I'm currently doing is called Integrated Project. As the name suggests, it has all the components you can think of. It has education, health, and livelihood, and also mental well-being as a part of this project. It's a block saturation model. And for this project, we are addressing malnourishment, we are addressing early education problems, we are also addressing जो self-help group होते हैं उनका income enhancement, and obviously जो बच्चे adolescence में step in कर रहे हैं वो 11 to 15 years के जो बच्चे उनका mental well-being पे we are doing some sessions. So this is what I'm doing currently, and Right. Himanshu, let's hear it from you. So not repeating what Kriti just has said, वो सारी चीजें तो हैं ही स्ट्रैटेजी एंड वो मुझे लगता है प्रोग्राम मैनेजर के रूप में the greater responsibility is to grow the organization and grow your team as well. So at the same time, I think there are 2 domains. There are 2 stakeholders for that matter. एक हमारे external stakeholders हैं जिनको हम state कह के संबोधित कर रहे हैं या government कह के संबोधित कर रहे हैं. एक हमारे internal stakeholder भी. So currently I am associated with Piramal Foundation, where यहाँ पे मैं एक मध्य प्रदेश state transformation program के साथ associated हूँ. We work in almost 52 districts, all 52 districts in Madhya Pradesh, and we work on the systemic transformation. We run a large-scale impact-driven program such as कि 9,200 schools के लिए aesthetic literacy और 21st century school education हम कैसे कर सकते हैं, and that too curriculum integrated. We do some systemic transformation initiatives such as कि हम litigation management किस प्रकार से कर सकते हैं state में court cases को drop down करने के लिए, हम किस प्रकार से स्टेट के लिए ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं, जो वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, सीमेट को कैसे डेवलप कर सकते हैं, डाइट्स को कैसे एम्पावर कर सकते हैं. एट द सेम टाइम एज अ पार्ट ऑफ माय रोल आई एम वेरी मच प्रिविलेज्ड टू वर्क इन अ ऑर्गेनाइजेशन जो ना केवल विद इन द स्टेट आपको काम करने का मौका देता है बट आउटसाइड द स्टेट. आई ऑल्सो वर्क ऑन द डोनर प्रपोजल. हमारा एक पिरामल यूनिवर्सिटी है जो अभी जयपुर में बन रहा है. So how we can, think and conceptualize a university which is created a handcrafted courses for the middle managers who are the backbone of the education system. So the point is कि एक तो हमारे ये external stakeholders रहते हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं और चीजों को डेवलप कर रहे हैं, but at the same time we run a fellowship program called Gandhi Fellowship. So वहाँ पे focus is more on to how you are developing your own resources. आपके पास normal development सेक्टर में प्रोफेशनल आता है,
एंड एज अ मैनेजर, एज अ पार्ट ऑफ योर रोल कि आप वो जो व्यक्ति आपके पास आया है एक अच्छी, मतलब इतने सारे करियर अपॉर्चुनिटीज के बीच में एक हार्ड हिटिंग झोला लेके चलने वाली जॉब को करने के लिए और ग्राउंड पे वो हिट करना चाहता है, तो उसका डेवलपमेंट आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं? हाउ यू आर इंश्योरिंग देयर वेल बीइंग, नॉट ओनली द फिजिकल बट ऑल्सो द मेंटल वेल बीइंग, कि वो क्या कर रहा है, उसकी प्रोफेशनल वेल बीइंग एंड उसकी लाइफ में मीनिंग और पर्पस को फाइंड आउट करने में हम कौन से स्किल सेट इम्पार्ट करते हैं? So, adding to the Kriti's point, people development is a majority part of our role. And आप चूंकि ये डायलॉग सेशन कर रहे हैं एस्पायरिंग डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स के लिए, तो मैं यहाँ पे ये चीज स्पष्ट करना चाहूंगा कि डेवलपमेंट प्रोफेशनल के लिए ना वो पूरा जर्नी जो है ना वो एंड टू एंड है। मतलब अगर आप मैनेजर भी बन जाएंगे तो आपको काम वॉलंटियर वाला भी करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि फिर आप वो जॉब लेके बैठेंगे। एक छोटा सा इंसिडेंस है, नैल्को का जब प्लान डेवलप हुआ था तो रतन टाटा वहां पे कार में अपने सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेके नासिक जा रहे थे। बीच में उनकी गाड़ी खराब हुई। गाड़ी खराब होने के बाद लोगों को लगा कि टायर पंचर है, इसके रिप्लेसमेंट में टाइम बनाया गया। नीचे लोग आके खड़े हो गए और इत्मीनान से देखने लगे। कुछ लोगों ने सिगरेट चलाई, कुछ ने गॉसिपिंग स्टार्ट कर दी। 2-5 मिनट के बाद देखा रतन टाटा नहीं दिख रहे। फिर जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने देखा तो वो कहाँ पे, तो वो स्पिनर और जैक लेके वो टायर के पास बैठे हुए थे। उनकी स्लीव्स रोल्ड आउट थी, जो उनकी टाई थी वो ऊपर पड़ी हुई थी और वो स्टेपनी चेंज कर रहे थे। दिस शोज द ट्रू वैल्यू ऑफ कि व्हेन यू वांट टू रीच एट द टॉप ऑफ योर प्रोफेशन, उसका सबसे जो छोटे से छोटा काम है ना, दैट माइन्यूट डिटेल यू मस्ट नो। अगर आपको एक बड़ी नैनो कार बनानी है तो आपको गाड़ी का पंचर चेंज करते भी आना चाहिए। एंड दैट शुड बी द प्रो बोनो, या दैट शुड बी द आइडियल स्ट्रैटेजी फॉर अ डेवलपमेंट प्रोफेशनल कि मुझे बेसिक से लेके एडवांस तक सारा जो स्पेक्ट्रम है वो क्लियर होना चाहिए। मुझे फ्लेक्स के बारे में पता होना चाहिए कि वो 7 रुपए स्क्वायर फीट छपता है या 18 रुपए स्क्वायर फीट छपता है, उसमें कितनी रिपीट्स लगती है, उसका कौन सा साइज अवेलेबल होता है। and then you can drive and conceptualize a social and behavior change. So that's how. So some brilliant points that came out of this last answer from the both of you is basic से advanced तक सारी skills जाननी पड़ेंगी, चाहे आप किसी भी level पे पहुंच जाओ। और ये आई थिंक सिर्फ नॉन फॉर प्रॉफिट के लिए ही ट्रू नहीं है, डेवलपमेंट सेक्टर के लिए ओवरऑल दिस इज वेरी ट्रू। यू नीड टू नो योर फील्ड वर्क। आपको फील्ड पे जाना पड़ेगा, भले ही आप एक एनालिस्ट हो या कि आप एक प्रोग्राम मैनेजर हो। यू विल हैव टू गो टू द फील्ड, यू विल हैव टू डू वॉलंटियर लाइक वर्क, यू विल नीड टू हैव हार्ड स्किल्स जैसे फिनेंस, बजटिंग एक्सेट्रा जो कृति ने मेंशन किया था। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, अपनी टीम को मोटिवेट करना, लोगों को अपने अपने रिसोर्सेज की ग्रूमिंग करना और उनको उनके गोल्स अचीव करने में हेल्प करना, अगेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो व्हाट इज द करियर प्रोग्रेशन लाइक? अगर हम नॉन फॉर प्रॉफिट सेक्टर की बात करें तो एज यू राइटली मेंशन, सारे यहाँ पे बडिंग यंग प्रोफेशनल्स हैं जो डेवलपमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं। कहाँ से वो शुरुआत करें, करियर ट्रिजेक्टरी कैसी होती है, or both within moving up the ladder within an organization or in terms of lateral entry or switching between organizations. Himanshu, let's begin with you. Okay. So might be मैं इस क्वेश्चन को आंसर कर सकता हूँ क्योंकि I also started my career जिसको कुछ भी नहीं आता था, वॉइस को प्रोफिशिएंट वाला जर्नी है। So मैंने अपना करियर जो स्टार्ट किया तो एक ब्रीफ बता देता हूँ, कनेक्ट करने में इजी रहेगा। तो स्टार्टेड माय करियर विद वॉलंटियरिंग, जो मैंने बताया कि ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ शुरू किया था। लेटर आई जॉइंड दिस चीफ मिनिस्टर गुड गवर्नेंस एसोसिएट प्रोग्राम, जहाँ पे मैंने एक एसोसिएट और एक कंसल्टेंट की कैपेबिलिटी पे, कैपेसिटी पे काम किया स्टेट के साथ। देन जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा शौक ही है किसी चीज को एकदम जीरो से लेके एडवांस तक लेके जाना। तो एट दैट टाइम आई थॉट कि अब डिस्ट्रिक्ट हो गया, अब स्टेट हो गया, अब क्या करें। नेक्स्ट आई ज्वाइंड MHRD's इनोवेशन सेल, जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। तो नेशनल लेवल पे काम करने का एक्सपोजर, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन्स के बारे में आपने सुना होगा। वो स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन जो है वो MHRD का इनोवेशन सेल भी करता था। तो नेशनल हो गया तो फिर सोचा अब इंटरनेशनल कुछ देखते हैं। तो इंटरनेशनल में देन आई ज्वाइंड UNDP। तो चलिए नेशनल के बाद अब इंटरनेशनल देखते हैं। तो आई ज्वाइंड UNDP एंड आई joined a project in association with Ministry of Youth Affairs and Sports, and currently I am in a Pradhan Foundation. Coming to your question, आप जो कह रहे हैं, मेरा ट्रैजेक्टरी मुझे ये एक्सपीरियंस देता है कि यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक।
क्योंकि अगर आप कंसल्टिंग में जाते हैं, अगर आप किसी भी एडवाइजरी रोल पे जाते हैं, तो आपको ग्राउंड रियलिटीज का पता होना चाहिए, है ना। जैसे कि एक अच्छे प्रोडक्ट डेवलपर के लिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि वो कंज्यूमर माइंडसेट से सोचे कि कंज्यूमर कैसा सोच रहा है। तो ऐसे ही फिलैंथ्रोपी में जाने के लिए आपको बेसिक पता होने चाहिए कि दिक्कतें आखिर आती कहाँ है ना, और उन दिक्कतों का मतलब प्रॉब्लम वो एक्चुअली स्टक कहाँ है। दुष्यंत कुमार का एक बड़ा अच्छा शेर है कि ये सारा जिस्म बोझ से झुककर दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा, और यहाँ आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। वो पानी कहाँ ठहरा हुआ है ना, उसकी पहचान होना आपको बहुत जरूरी है, एंड दैट्स हाउ यू शुड स्टार्ट विथ द ग्राउंड। एवरी developmental professional should start with some sort of ground experience. एंड ओवर द पीरियड आप जैसे जैसे ग्रो करते हो, तो देयर आर 4 काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 4 कैटेगरीज हैं सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के। कुछ ऑन फील्ड प्रैक्टिशनर्स हैं, जैसे कैवल्य एजुकेशन फाउंडेशन है, जिनके गांधी फेलोज हैं, जो आपकी ड्रीम अ ड्रीम है, जो कृति बता रही है अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन है, ये सारे ऑन फील्ड प्रैक्टिशनर्स हैं जो फील्ड पे एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। कुछ आपकी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो फंड्स देती है, जैसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, आपका माइकल एंड सुजान डेल फाउंडेशन है, सिफ इंटरनेशनल है, ये सारी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है। आप वहां पे ये देख सकते हैं कि मनी का एलोकेशन आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अच्छा मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन स्कोर कर सकते हैं। थर्ड, आपकी कुछ कंसल्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की तर्ज पे इकोसिस्टम शेपिंग का काम करते हैं, जिसमें आपके बिग फोर्स हैं, बीसीजी है, केपीएनजी है, सत्वा है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन इकोसिस्टम शेपिंग का काम करती है। और चौथी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है थिंक टैंक, जिसमें आप काम कर रहे हैं, एआईजीजीपी है हमारा, हमारा नीति आयोग है, हमारे डेलबर्ग है, आईडीआर इंडियन डेवलपमेंटल रिव्यू। तो ये 4 अलग अलग लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि इंसान को अपने अर्लियर करियर स्टेज पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहिए, जब तक उसको लर्निंग एजिलिटी और लर्निंग स्कोप समझ में आ रहा है कि हाँ मैं कुछ सीख पा रहा हूँ। वंस यू एबल टू रिकॉग्नाइज कि आपका वो लर्निंग एजिलिटी यहाँ पे कर्व वो खत्म हो गया है, यू गेट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग और अ डिसेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेक्टर, यू कैन स्विच ऑन टू द डिफरेंट सेक्टर। और जब आप स्विचिंग करें तो मेरा ये है कि अगर एजुकेशन में रहकर आपने एजुकेशन में ही स्विचिंग किया तो क्या किया, इन योर अर्ली करियर डेज आपको दूसरे टाइप की ऑर्गेनाइजेशन, थिंक टैंक्स को आपको ट्राई करना चाहिए, आपको फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करना चाहिए। तो होगा क्या, जैसा मैंने आपको कहा कि आपको एक लायंस व्यू से ये तो समझ में आ रहा है कि आपको माइन्यूट डिटेल पे कैसे काम करना है, बट आपको एक बर्ड व्यू भी समझ में आना चाहिए कि पूरा डेवलपमेंट स्पेस ड्राइव कैसे। And after this 3 to 4 transitions, you can stick to one particular goal कि यार अब ये मुझे अपील करता है। और इन माय केस मुझे मतलब एजुकेशन और यूथ डेवलपमेंट 2 ऐसे डोमेन है जो मुझे बहुत अपील करते हैं। तो जो जबलपुर से लेके यूएनडीपी तक का सफर खत्म करने के बाद स्टिक टू कि यार अब मैं अपने इस ये सेक्टर मुझे अपील करता है, इसको मैं बर्ड व्यू से देख पाता हूँ, एंड आई विल डेवलप माई कॉम्पिटेंसी एंड आई will create my proficiency on this particular domain. So this is my view on career progression and inter-domain transition. Over to you, Kriti. Right. Kriti, would you like to add something to what Himanshu just shared with us? Yeah, my view is a bit different because not everyone actually goes for volunteering in the starting. Not everybody also gets chance to volunteer. Normally, when you go at local level or तो वॉलंटियर के जो आपके ऑप्शंस होते हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं हमारे यहाँ पे। ऑल्सो इन इंडिया अभी दिस इज अ इमर्जिंग इवॉल्विंग सेक्टर, इट इज बिकमिंग वेरी फॉर्मल नाउ फ्रॉम इनफॉर्मल। पहले सिर्फ फील्ड पे हम जब एनजीओ की बात करते थे तो एक हमारे जहन में इमेज आती थी कि कोई झोला लेके कुर्ता पजामा पहन के जो फील्ड में जा रहा है, अच्छा आप एनजीओ के लिए काम करते हैं। बट अभी हम ऐसे नहीं रहे हैं, वी आर बिकमिंग वेरी फॉर्मल सेक्टर। और as rightly said, there are different kind of NGOs जो काम करते हैं। कुछ बहुत अच्छे implementation में होते हैं, कुछ पूरा काम करते हैं। Like AIF in itself, they raise their own fund, we design our own program, then we implement it also as well. And there are institutional donor, like they are called institutional donor. But I personally feel कि यही एक ऐसा sector भी है
जहाँ पर आप अगर पैशनेट है और आप करना चाहते, जैसे माई ओन स्टोरी, आई वॉज डूइंग दिस फ्रॉम लॉन्ग, बट आई वॉन्टेड टू डू, एंड अगर आप एक जंप करना चाहते हैं या यू वांट टू स्विच, I think you can easily switch if you're hardworking. This is not, obviously it is not a cakewalk, and I think कोई भी काम cakewalk नहीं होता है. If you want to reach उसके top पर, या आपको अच्छा करना है उसमें, तो so it is not a cakewalk, but it is very fulfilling. So you will keep learning. NGO sector में जैसे अभी मैं ये project कर रही हूँ, so I'm learning. Every project is a new learning. तो आप कितना भी सोचिए कि आपने सीख लिया है, but as soon as some new problem comes, or as soon as a new problem statement comes with the, जैसे कोविड के बारे में कोई भी prepared नहीं था, but lot of NGO, we have done lot of COVID relief work, although we were not formally a disaster management institute or NGO. So I think अगर आप एक willing है, you are willing to take this risk, if you take this risk, it will be worth it. And also within the organization, एक certain level के बाद आप अपने आप, as you know, this, I in fact feel this is very fast growing. आपकी growth बहुत जल्दी होती है, because इस sector में there is less, I would say, typical जो हम बोलते हैं कि office politics है और इस तरह का है, वो थोड़ा कम होता है, मुझे लगता है इतना ज्यादा नहीं होता है. And if आप साथ में भी पढ़ के काम कर सकते हो, it's not very difficult to get into the sector, and you can do CSR courses, you can do MSW कभी आप कर सकते हो. It's not a very difficult course to pursue. ISDM is there, there are online courses. आप वो सब करके भी, and especially जैसे मान लीजिए आप health पे एक project कर रहे हैं, तो I as a project manager I am speaking कि जरूरी नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मेरा बैकग्राउंड डॉक्टर का नहीं है, बट देन आई डोंट नीड टू बी अ डॉक्टर टू रन दिस प्रोजेक्ट. सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्टर. यू विल नेवर गेट बोर्ड, यू विल लव वर्किंग हियर, यू विल गेट न्यू प्रोजेक्ट्स. हर 3 साल बाद कोई नई पॉलिसी आएगी गवर्नमेंट की, कोई नया आपको चांस मिलेगा कुछ करने का. दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस सेक्टर. So there's a lot of growth. You can even become, there are CEOs, there are CEOs. They're very good, nicely paid jobs, and very respectful, very respectable center. मतलब sector है, आप जहाँ पर जाते हैं काम करते, people respect you for the work you're doing. So I feel it is not impossible to jump from other sector. Yeah. So exactly picking up from the last point that you made, Kriti, आपने बोला कि jobs हैं, CEOs हैं, well-paid jobs हैं. So I actually wanted to come to the topic of compensation, जो career progression के I would say parallelly run करता है. And this is important क्योंकि जैसे हिमांशु ने मेंशन किया, there are different organizations within the development sector, right? There are the consulting firms, which are the big fours. There are think tanks. There are non-for-profits who often work on the field, the field-based organizations. Field-based organizations के बारे में कई बार perception होता है, अभी भी है, like you mentioned Kriti, कि झोला लेके, But then a lot of people want to be well compensated, or at least be able to fend for themselves, their wants, their needs, their family. So in line with career progression, what are the thought dono Himanshu and Kritika on compensation in the non-for-profit sector, without naming names, without referring to a particular person, whatever the two of you want to share. Himanshu, do you want to go first? Yeah, sure. So अगर हम compensation की बात करें, we talk about compensation, so it usually differs. और ये मुझे लगता है ये डेवलपमेंट सेक्टर में नहीं है, यूजुअली ये हर सेक्टर में. सेकेंडली कृति ने जैसे अभी कहा कि यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस उतना नहीं है, यहाँ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ज्यादा है, ये एक वैल्यू ड्रिवन सेक्टर है. तो समटाइम्स विद अ ग्रेट पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है. तो आपको जो इंडस्ट्री स्केल है, यदि आप कॉर्पोरेट से कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली द कंपनसेशंस आर लेस. बट मुझे लगता है कि कॉम्पनसेशन जो कॉस्ट कंपनी होता है ना, CTC, उसमें जो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसका कैलकुलेशन नहीं होता. So if you are thinking, and that's why I told you कि passion is more important. If you are passionate about it, then you will get a decent compensation, I would say.
अगर आप इसके लिए पैशनेट नहीं है एंड यू आर डूइंग इट जस्ट फॉर एज अ अदर करियर ऑप्शन, आप हमेशा एक कंपैरिजन में रहेंगे कि यार यहाँ पे पैसा कम मिलता है, मतलब मैं यहाँ का मैनेजर हूँ और मैं वही किसी कॉर्पोरेट का मैनेजर हूँ या किसी स्टार्टअप का मैनेजर हूँ, तीनों के कॉम्पेंसेशन में डिफरेंस। तो मुझे लगता है कि जब तक आप इसको पर्पस से जोड़ के देखेंगे एंड यू आर फीलिंग अलाइंड विद द सेक्टर, द कंपनसेशंस आर गुड इनफ। झोला लेके चलने वाली एक लाइफस्टाइल होती है, मतलब उसको हम सिंप्लिसिटी कहते हैं, बट इट हैज नथिंग टू डू विद द फाइनेंसेस, है ना। हमारे गांधी जी एक धोती लपेट के चलते थे, लेकिन लेने की तो द पॉइंट इज कि आप अपना लाइफस्टाइल चूज करते हो, कॉम्पनसेशंस आर गुड। सेकेंड, अगर आपको ट्रांजिशन करना है तो एवरी सेक्टर हैज देयर अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी में काम करने वाले जो नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल एम्प्लॉय हैं जो किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, लेटर ऑन वो अपना ग्रोथ और अपना कैपिटलाइजेशन बढ़ाने के लिए खुद का प्रोडक्ट डेवलप करते हैं और एंटरप्रेन्योर बनते हैं। सेम ऑप्शन आपके पास सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का भी है। भाई अगर आप एक एसएचजी के साथ काम कर सकते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट में काम कर सकते हैं, गो एंड डेवलप योर ओन प्रोडक्ट इफ यू वांट टू मेक मनी आउट ऑफ इट, है ना। तो वो ग्रेटर गुड के साथ मनी भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। तो यू हैव टू डिफाइन योर ओन स्टैंडर्ड्स, आपको अपनी लिमिटेशंस भी डिफाइन करनी पड़ेगी। बट हाँ, ये जरूर है कि अगर इफ यू आर थिंकिंग कि आई एम डिलीवरिंग समथिंग फॉर द ग्रेटर गुड और उसके लिए मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, दिस इज अ रॉन्ग मेंटालिटी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकेंड इज कि हमें फिर एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल जो करना है, वो दैट इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन सो मेनी ऑफ अदर इनकम रिसोर्सेज। तो उसके लिए डेवलपमेंट सेक्टर को एक कोर रिसोर्स नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जब आपका मनी मेकिंग का इंटेंशन इस सेक्टर के साथ जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं सेक्टर अपने आप आउट ऑफ द ट्रैक हो जाता है। मुझे लगता है वही वही एक थिन लाइन है जो कॉर्पोरेट के बीच में है कि डेवलपमेंट सेक्टर क्या है और कॉर्पोरेट सेक्टर क्या है। वो प्रॉफिट मेकिंग उतना नहीं होना चाहिए। भूषण कुमार जी बड़ी अच्छी चीज कहते हैं कि आज सड़कों पर लिखे हैं सैकड़ों नारे न देख, हर अंधेरा देख तू आकाश के तारे न देख। आपको अपनी रियलिटीज, अपनी जरूरतें देखनी चाहिए। एक दरिया है यहाँ पे दूर तक फैला हुआ, देयर इज नो एंड, स्काई एज अ लिमिट। और डेवलपमेंट सेक्टर में भी नहीं, एक दरिया है यहाँ पर दूर तक फैला हुआ, आज अपने बाजुओं को देख पतवाने न दे। अब यकीनन ठोस है धरती हकीकत की तरह, वह हकीकत देख लेकिन खौफ के मारे न दे। और दिल को बहला ले, इजाजत है मगर इतना ना हो, रोज सपने देख लेकिन इस कदर प्यारे न देख। तो वो एक रियलिटी का कॉम्बिनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन लीड अ वेरी गुड लाइफ। आज एक डेवलपमेंट सेक्टर, मतलब आई एम जस्ट 28 ईयर्स ओल्ड, मैं एक टाइटन की घड़ी, एक आईपैड और एयरपॉड्स के साथ बैठ के अगर आपसे संवाद कर पा रहा हूँ, अगर मैं कहीं पे जाता हूँ तो मुझे फ्लाइट टिकट्स मिल जाती हैं, होटल बुकिंग मिल सकती है, तो आप ये समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट सेक्टर में भी एक अच्छी, कंफर्टेबल और डिसेंट लाइफ है। दिस इज माय टेक ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। राइट, की टेक अवे है कि आपके जो मोटिवेशंस और एस्पिरेशंस है वो राइटली अलाइंड होने चाहिए बिफोर यू गेट इनटू द डेवलपमेंट सेक्टर। एंड जैसे हिमांशु ने कहा कि डेवलपमेंट सेक्टर में भी the life can be pretty comfortable, but it is unrealistic to compare it to say compensations in the corporate sector. But again, you always have the option to switch or यूज जहां पे भी आप काम कर रहे हो नॉन फॉर प्रॉफिट में एज अ लॉन्च पैड to get into entrepreneurship or some of the other sectors within the development space if you might want to. Kriti, anything you would like to add? Yeah, I also want to add that in development sector, आपको ना बहुत छोटी जगह पर भी good compensation की opportunity मिलती है. Especially the states like MP, we might think कि यहाँ पर आपको इंजीनियर को शायद लोकल लेवल पे इतना अच्छा ऑप्शन ना मिले जितना एक डेवलपमेंट सेंटर कंसल्टेंट को, इनफैक्ट इवन फील्ड वाले को, वो अगर ड्रिवन है, अगर वो ये काम करना चाहता है तो उसको बहुत अच्छा कॉम्पेंसेशन मिलता है कंपेयर टू, यू डोंट हैव टू रीलोकेट. That is also a benefit. You might earn a little bit less because baki, when we say CEO बनना है तो everybody thinks of Mumbai, Bangalore or Gurgaon, but ऐसा जरूरी नहीं है. So you know, if you want to become a big manager, हम बोलते manager बनना है तो you think of big places only. You again want to think of financial capitals या वो कि आपको वहीं पर ऐसे compensation मिलता होगा. But development sector में
ऐसा नहीं है, आपको छोटी जगह पर भी यू गेट गुड कॉम्पेंसेशन। एज मेंशन्ड, मैंने पहले भी बोला था कि अब ये सेक्टर बहुत फॉर्मलाइज हो रहा है। सीएसआर फंडिंग बहुत बड़ा एक पूल है जिसके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं और जिसमें काफी अच्छा कॉम्पेंसेशन मिलता है। सो आई पर्सनली फील दिस इज अ गुड सेक्टर। इट pays you better than average income. It pays you better. Amazing takeaways from this from this last question. मुझे ये question करना था because I personally feel कि कई बार we shy away development sector के as professionals to talk about these things. These things are important and it is great to your insights from fellow Also, I development. would like to add, there's a big focus on green jobs. Every company is moving towards, more green jobs and all this, all strategizing these jobs which are going to pay back to society. All of them are going to fall under development sector. All the new innovations, all the strategies, new policies, scheme ko implement karne ke liye, it's going to become more formal. So there are going to be a lot of jobs, and it's a very, as I said, कि average से better आपको pay कर सकता है। इंडिया की जो average एक graduate की salary होती है, उससे बेहतर आपको income दे सकता है। Right. So before I open the floor for the Q&A, my last question to both of you is, what is the most rewarding part of your job, and what is the most challenging part of your job? Kriti, let's hear you first. Yeah, so most challenging is कि अभी भी जैसे आपने बोला कि लोगों का perception है, तो बहुत ज़्यादा I feel बहुत passionate young लोग और I would say highly educated लोग अभी इसमें इतना interest नहीं लेते, तो hire and get that kind of pool of people is a little difficult. The second challenge you will always find in this sector up to a level, एक level तक आप लोग करेंगे, which is uncertainty. जब तक कि आप एक लेवल पे नहीं पहुंच जाते, क्योंकि एक बड़ा चैलेंज होता है कि आप एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हो। दैट प्रोजेक्ट कैन बी ऑफ अ ईयर, ऑफ 2 ईयर, 5 ईयर, दैट इज इट। तो आपका जो मेजॉरिटी स्टाफ होता है या आप भी है, फॉर एग्जांपल यू आर अ प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट पर्सन, बट वंस यू cross that limit, once you go at manager level, beyond that, and once you become regional director and all those position comes in, then that problem will not be there. But the uncertainty of project to project is something which I think यहाँ पे ज़्यादा लोगों को थोड़े face करने पड़ते हैं. And the most rewarding thing is obviously when you get to meet the beneficiaries. आप छोटे छोटे बच्चों से मिलते हो जो आप उनकी हेल्प कर, सबको आई थिंक एवरीवन हैज दिस गुड पर्सन इनसाइड देम, एवरीबडी इफ यू विल आस्क वांट टू हेल्प समबडी, बट हम लोग इतने लकी होते हैं कि हम जाके एक्चुअली कुछ कर पा रहे होते हैं। वी कैन सी द रिजल्ट। अगर हमने स्मार्ट क्लास लगाई है तो वो गवर्नमेंट स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जब प्रोजेक्टर पे पहली बार कुछ they see animations or they see something, they become so happy and that is so fulfilling. So I feel the happiness to see and the hard work you have done, you see the beneficiary benefiting from it, that is the most satisfying thing. Himanshu, what is it for you? So मैं challenges से शुरू करता हूँ। सबसे पहला चैलेंज होता है एक सरकारी काम को असरकारी तरीके से कैसे करना। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। आप काम सरकार के साथ कर रहे हो लेकिन आप सरकारी पद्धति से नहीं कर रहे हो, आप असरकारी पद्धति से कर रहे हो। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे ये लगता है कि, और ये एक हार्श रियलिटी, एक इनसाइट के रूप में मैं यहाँ पुट अप करना चाहता हूँ, in order to maintain good relationship with the government, sometimes we become like the government. हम ये सोचते हैं कि हमारा टाई अप है किसी सरकार के साथ, हम ये सोचते हैं कि उनके हम पे लाइसेंसिंग बना रहे, क्योंकि ये हमारी वर्क फील्ड है। नो मैटर कि कितना भी मनी पूल इन हो रहा हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आपके पास वर्किंग स्पेस ही नहीं है, अगर वो एंट्री ही नहीं है गवर्नमेंट इकोसिस्टम में, तो आप क्या करेंगे उस पैसे? सूनर और लेटर आपका फंडिंग भी बंद हो जाएगा। हम फिर क्या करते हैं, वहाँ रिलेशनशिप मैनेजमेंट शुरू करते हैं। हम वी टेंड टू क्रिएट, हम वो टफ डिस्कशंस जो टफ कॉन्वर्सेशंस जो किसी स्टेक होल्डर से होने चाहिए वो हम अवॉइड करते हैं। उसके दो कारण हैं।
एक तो जिन लोगों से हम आईएएस, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से जब कॉन्वर्सेशन करते हैं तो हम वो भी एक यस सर वाला एटीट्यूड लेके चलते हैं कि हाँ आप को ज्यादा नॉलेज है। इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग एविडेंस बेस्ड एक्शन, हम ओपिनियन बेस्ड एक्शन जो है, ओपिनियन बेस्ड जो अप्रोचेस हैं उसको फॉलो करना है। सो बीइंग इनटू द गवर्नमेंट but with a different mindset, with a data driven mindset, with a evidence based mindset, and creating the scope for innovation, कन्वेंशनल पाथ को छोड़ के अनकन्वेंशनल सोच पाना और उसको वो बरकरार रख पाना, आई सी एज अ फर्स्ट एंड फोरमोस्ट चैलेंज फॉर द डेवलपमेंट सेक्टर प्रोफेशनल। या तो हम वो एक मिड पाथ ढूंढ लेते हैं या अपनी चीजों को ये गिव अप करने लगते हैं। तो वो एक चीज है कि हम कैसे उस जील को बरकरार रखें, है ना। उसको शुरू करना ही इंपॉर्टेंट नहीं, उसको बरकरार रखना एंड कोर्स करेक्शन करना। अगर आपको चीजें, अगर आपको डोमेन एक्सपर्टीज है तो कोर्स करेक्शन फॉर द गवर्नमेंट और उसके लिए टफ कॉन्वर्सेशन करना, वो एक बड़ा चैलेंज है जो हम देख रहे हैं। सेकेंड, मुझे ये लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन एट स्केल, कई बार हम छोटे छोटे इनिशिएटिव्स में या छोटे स्केल, क्योंकि हम एक जब डेवलपमेंट सेक्टर की बात कर रहे हैं तो हम एक बड़े लार्जर स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो हमेशा सोचने का तरीका है, वी शुड फोकस ऑन द सिस्टमिक माइंडसेट। हमें किसी भी चीज को, वी वांट टू ड्राइव ट्रांसफॉर्मेशन एट स्केल। तो हमें जब भी कोई इनिशिएटिव डिजाइन करना है या ड्राइव करना है, वी शुड थिंक सिस्टमिकली कि सिस्टमिक ट्रांसफॉर्मेशन हम उसमें कैसे लेके आ पाते हैं। और वो सिस्टमिक थिंकिंग इज समटाइम्स गेट्स डाइल्यूटेड जब आपके पास चीजें ज्यादा होती हैं या टफ होती हैं। तो चीजों को इम्प्लीमेंट करना, बट उसके स्केलेबल सॉल्यूशंस डिजाइन करना और जो प्रैक्टिकली फीजिबल है उनका अच्छा गवर्नेंस फॉर्म करना, ये एक सेकंड चैलेंज है जो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट सेक्टर प्रोफेशन को आता है। एंड थर्ड एंड द लास्ट इज टू कीप योर पैशन इंटैक्ट। वो कई सारी फोर्सेस हैं, आपके दोस्त धीरे धीरे कॉर्पोरेट में बढ़ते हैं, कोई सिंगापुर जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई 5 स्टार्स में फोटो वोटो खिंचा रहा है, कोई लेक्चर वेक्चर दे रहा है, और आप वही काम शांति तरीके से कर रहे हैं। वो जो कृति कह रही थी ना, जो छोटी जगह पे कॉम्पनसेशन अच्छा, वो थोड़े टाइम के लिए सही लगता है, लार्जर टाइम पे वो आपको बहुत हॉन्ट करता है कि भाई अब मतलब वो अब्रॉड और ऑन साइट का अपॉर्चुनिटी और डेवलपमेंट सेक्टर में कहाँ जा पा रहे हैं। तो वो भी कि आपको अपने पैशन को इग्नाइट रखना और उसको ड्राइव करना, एंड सी दिस एज अ थर्ड चैलेंज कि आप वो स्टिक टू योर थॉट एंड योर हार्ट शुड बी एट राइट प्लेस। ये एक तीसरा चैलेंज है जो हमें मेंटेन रखना पड़ता है। रिवॉर्डिंग क्या है? तो रिवॉर्डिंग सबसे बड़ा ये है कि बहुत सारे लोग ना जब पैसा कमा लेते हैं तो वो सोचते हैं कि इस पैसे का किया क्या है। तो वो एक, हर आपकी जो हसरतें होती हैं, आप जो चाहते होते हैं, उनकी एक लिमिट है। इंसान एक साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए जीता है, एक पर्पस के लिए जीता है, ऐसा मेरा मानना है। वो पर्पस आपको हर दिन मिलता है। सो एवरी डे यू विल wake up with a purpose and you invest your time and energy for that purpose। और वो ऐसा नहीं रहता कि अब हम पहले कमा रहे हैं और फिर हम एक समय के बाद ये कर्म खत्म करेंगे, फिर धर्मार्थ सेवा पे जाएंगे और फिर मतलब इधर उधर जाके फिलेंथ्रोपी के छोटे छोटे इनिशिएटिव करेंगे। आप सिस्टमेटिकली किसकी लाइफ को कैसे चेंज कर पा रहे हैं, यू सी अ प्रोग्रेशन कि हम किसी की लाइफ में एंड टू एंड जाकर उसके पूरे स्पेक्ट्रम को, उसकी पूरी थिंकिंग को, उसके पूरे इकोसिस्टम को शेप करना है। एंड दैट्स हाउ यू आर शेपिंग द नेशन इटसेल्फ। नेशन बिल्डिंग एक टर्म है, वो नेशन बिल्डिंग में भी आपका एक कंट्रीब्यूशन है। वो पैट्रियोटिज्म जो 15 अगस्त 26 जनवरी को जमता है ना, वो आपका थ्रू आउट द ईयर मेंटेन रहता है। तो rather than waiting for the opportunity, you are creating the opportunity, that is the most rewarding point। क्योंकि जब आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो तो इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन। बहादुर शाह जफर जो भारत के आखिरी मुगल शासक थे, बहुत ज्यादा राज नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा कुछ फैंसी नहीं कर पाए। उसी को फ्रस्ट्रेशन को उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा था कि कैदों हसरतों से कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में, और उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार। तो ये रियलिटी है कि हम या तो हमारे पास 4 दिन है जिंदगी के, 2 दिन हम केवल आरजू करते हैं और 2 दिन इंतजार करते हैं और जिंदगी खत्म हो जाती है। ये डेवलपमेंट सेक्टर की जिंदगी आपको हर दिन वो मौका देती है कि आप अपनी आरजू को और आप जो आप करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हैं, एवरी डे यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी एंड यू कैन ड्राइव इट। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। तो नाउ we begin with हमारा Q&A का section। For everybody who's raising their hand,
मैं रिक्वेस्ट करूंगी इफ अगर आप अपना कैमरा वीडियो ऑन करके हमसे बातचीत डायरेक्टली कर पाए, otherwise if that is not possible then you can definitely talk to us using your audio. So I see Siddharth Chauhan is a CM fellow, and Siddharth, you can mute yourself and ask your question. Hello everyone, I'm Siddharth Singh Chauhan and I'm posted as a RA in Mandsaur district. So I have two questions. My first question is that, as Kriti mentioned, that as this developmental sector is getting more and more formal, so there'll be a lot of people who might have invested their graduation days and post-graduation days, maybe further studies in dedicated to this sector. So there'll be a lot of competition as well creeping in gradually. So what, according to you, would be few technical skills which one should keep abreast of so as to match the market standard? And the second question is that after this fellowship, CMYPDP, this beautiful fellowship, when it ends, what do you suggest that one should go for? Is it more experience, or one should go for getting good degrees from prestigious institution? Would you like Kriti to answer this? Yeah, sure. Okay. Hi, Siddharth. So basically, I would suggest for you, like you were personally asking this question, is that कि आप अगर चाहते हैं कि इस sector में, yes, there is competition, but there is not cutthroat competition. There's a difference in that. Like the kind of competition you will face in other sectors, let's say normal marketing, finance and all, उस तरह का competition you will not find here. Okay. It will be better than that. It will not be that stressful and that sort of thing. Second is, as I earlier also mentioned, parallelly if you start doing something, let's say after you finish your fellowship, you can obviously do CSR, you can understand corporate social responsibility का आप एक छोटा सा कोर्स कर सकते हैं. अगर आप prestigious institute की बात करें तो Tata Institute of Social Sciences, TISS is there, and they are now, every good institute also have executive courses which you can do while you're working. So you don't have to wait and do a course and then start working. Even IIMs are offering policy pay courses and management pay courses, which are 1 year short-term courses you can do online. Yes, it will be a lot of work. Yes, it will be really hectic for the time being. Yes, but then that's okay. You are getting the experience, because field experience भी बहुत जरूरी है. आप जितना जल्दी लोगों के साथ काम करने लगेंगे, जितना जल्दी एक्चुअल फील्ड की प्रॉब्लम देखने लगेंगे, समझने लगेंगे, आप खुद की अपने आप you will develop that understanding and expertise. That's what I think. Yeah. Okay, thank you. So a lot of people say that data analysis is one of the prerequisite when it comes to developmental sector. Do you agree? Siddharth, I will stop you there and just ask if Himanshu wants to add anything to your first question. So, अच्छा प्रश्न था सिद्धार्थ, बट दोस्त मेरे हिसाब से ये बहुत ही पर्सनल चॉइस है. मुझे आप एकेडमिक साइड में, whether you want to pursue higher studies, if I correctly get it, अगर आपको हायर स्टडीज के लिए जाना है, लेट्स से आप येल यूनिवर्सिटी में पब्लिक पॉलिसी करने गए, हार्वर्ड में जा सकते हैं, स्टैनफोर्ड में जा सकते हैं, और यू वांट टू गेट इनटू द डेवलपमेंट सेक्टर एंड स्केल अप योर लर्निंग्स व्हिच यू हैव गेन्ड फ्रॉम दिस CMYPDP फेलोशिप. सो द पॉइंट इज कि ये डिपेंड करता है. अगर आप एकेडमिक साइड पे जाना चाहते हैं, इफ यू एंजॉय मोर ऑन द रिसर्च वर्क, इफ यू एंजॉय मोर to understand the landscape but less on the field, you should go for the first option to get the higher studies, and you should develop some evidences, you should develop some strategies, you should develop some research work, action researches for the people who are actually working on the field to get to know कि यार कौन सा तरीका वर्क कर सकता है, कौन सा तरीका वर्क नहीं कर सकता. एंड अगर आप में से कोई भी ये बिलीव करता है, वो आर विलिंग, कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको पढ़ना कम पसंद होता है और फील्ड पे एक्शन करना ज्यादा पसंद होता है, जो हमेशा एक्सप्लोरेटिव नेचर के होते हैं, जो एग्जीक्यूशन में ज्यादा भरोसा करते हैं. तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड लर्निंग बाय डूइंग और ऑन द जॉब लर्निंग. तो ये सेकेंड ऑप्शन भी है, जहाँ पे आप एक बेसिक मिनिमम जो
आपके पास कंसेप्चुअल नॉलेज होता है उसको बिल्ड करते हैं एंड यू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट, एंड इम्प्लीमेंटेशन से आपको दोबारा लर्निंग होता है, वो एक साइक्लिक प्रोसेस है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव कि आप किस प्रकार से ज्यादा कंफर्टेबल है, एंड इट्स गुड दैट यू हैव अ गुड ब्लेंड ऑफ बोथ फील्ड एक्सपीरियंस एंड एकेडमिक एक्सपीरियंस, क्योंकि AIGGPA से आपको एकेडमिक एक्सपीरियंस भी मिल रहा होगा जब आप यहाँ पे ट्रेनिंग्स के लिए आते होंगे, जब आप रिसर्च के जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो देखते होंगे, और फील्ड एक्सपीरियंस भी मिल रहा है जब भी आप फील्ड में। तो आप में से हर कोई तो बहुत ही एक अच्छा चॉइस ले सकता है आफ्टर दिस फेलोशिप की, क्योंकि आप दोनों के पास दोनों ही टाइप के एक्सपीरियंसेस हैं। कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन जो अभी आप पूछ रहे थे, सो डेटा एनालिटिक्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा लेड स्टोरी टेलिंग, यानी कि हाउ यू एक्सट्रैक्ट द इनसाइट्स फ्रॉम द डेटा, है ना। So there are the people who can play really very well with the data, but they are not getting the insights of the data. So एक नया एक स्किल है, मैं आपको बताना चाहूंगा आप सभी लोगों को, डेटा बेस्ड स्टोरी टेलिंग। यू शुड लर्न हाउ टू पोर्ट्रेट द डेटा, क्योंकि आप जिस उसके लिए काम कर रहे हैं ना, आप जिस स्ट्रक्चर के लिए काम कर रहे हैं, जिस डोमेन के लिए काम कर रहे हैं, उसमें डेटा क्या निकल के आ रहा है उसको प्रोसेस करना है, वो तो एक पार्ट है। उससे इंपॉर्टेंट है कि उस डेटा का मैं करूँ क्या, tons and tons of data. So how you weave a story around the data and drive the actionables कि यार ये करना है, that is a more important skill. If you obviously you should have a basic understanding of data, but अगर नहीं है तो जैसे जैसे हमारा artificial intelligence बढ़ रहा है, जैसे जैसे हमारे पास data tools आ रहे हैं, they are making data more accessible and more convenient to interact with the normal people who do not know the data analytics. वो कहना चाहिए एनालिटिकल एबिलिटी मशीन लर्निंग सॉल्व कर देगा, पर क्रिएटिविटी वो सॉल्व नहीं कर पाएगा। आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू डेवलप योर क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल टू ऑब्जर्व एंड एनालाइज द डेटा एंड ड्राइव एक्शनेबल्स एंड स्टोरीज। Thank you. Thanks a lot. We are running out of time, but before we go, I have another question for Kriti and Himanshu. कि अगर and this is again a follow up to Siddharth's question कि हमें किस फील्ड में जाना है वो तो हम चूज कर सकते हैं, पर टू गेट योर फुट इन द डोर जिसे बोलते हैं, जब आप किसी फेलोशिप से या पढ़ाई करने के बाद अगर आप डेवलपमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं अच्छी, सो यू कैन गेट योर फुट इन द डोर, पहला जॉब सिक्योर करना जिसे बोलते हैं। तो हिमांशु, let's start with you. So have a good connections, have a meaningful connection. I hope the AIGGPA is giving you multiple opportunities to interact with the different people. आज आपने मुझसे बात की, कृति से बात की, how you can create a community of people who are working on the different sectors and the different organization. You can connect us on the LinkedIn. आप एक इकोसिस्टम जिसको हम बोलते हैं ना, डेवलपमेंट सेक्टर एक बहुत छोटी सी दुनिया है, लोग टकरा जाते हैं इधर उधर, तो आपको वो उस दुनिया का एक पार्ट बनने के लिए ना, यू शुड स्टेप इन एंड यू शुड रिमूव योर हेजिटेशन, चाहे वो एकेडमिक साइड के लोग हो, नॉन एकेडमिक हो, प्रैक्टिशनर्स हो, फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के हो, आपको सबसे पहले नेटवर्किंग शुरू करनी चाहिए। और आप लोगों को जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, एटलीस्ट जिन लोगों से आप पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं ना, उनसे तो आपको पर्सनली कनेक्ट करना चाहिए। Second, there are a range of opportunities to having this kind of dialogue. There are the summits, there are the talk shows, there are youth development forums. हमारे एमपी में यूथ महापंचायत हुई थी, उसके अलावा भी कई सारे there are CSR summits. तो ऐसे समिट्स, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे डायलॉग्स, ऐसे ओपन फोरम्स को आपको ज्यादा से ज्यादा चेक करने की जरूरत है, सो दैट यू कैन गेट टू नो कि आज की दुनिया में शायद ही कोई बहुत बड़ा इनिशिएटिव तो होगा, वो ऐसा हो रहा होगा जो एक ऑर्गेनाइजेशन ड्राइव कर रही है। गिविंग यू द एग्जांपल, एक युवा करके जनरेशन अनलिमिटेड इनिशिएटिव चल रहा है विच फोकसेस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ यूथ बाय 2030। अब इसको करने के लिए आप विश्वास नहीं करेंगे, 161 ऑर्गेनाइजेशन साइंड अप द एमओयू। अब अगर आप युवा के ही पेज को फॉलो करने लगेंगे तो आप कोई ना तो दो तीन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टकराने लगेंगे। तो यू गेट टू नो कि इसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं कौन कौन से। तो सेकंड, ये आपको करना चाहिए। एंड थर्ड, अपने काम को ना लिंक्डइन पे, अपने काम को किसी ब्लॉग पे, अपने काम को डॉक्यूमेंट करके रखिए। अगर आप अपने फील्ड एक्सपीरियंसेस और इनसाइट्स को डॉक्यूमेंट करके रखते हैं
तो मैं आपके 2-3 ब्लॉक्स पकड़ के ना ये समझ जाता हूँ कि आप प्रॉब्लम को एंड टू एंड कैसे देखते हैं। लेट्स से अगर आप किसी इनिशिएटिव पे काम कर रहे हैं गवर्नेंस, आप क्या करेंगे कि लास्ट में उसका एक फोटो और छोटा सा समरी बना के डाल देंगे, और इफ यू राइट अ स्टोरी अबाउट इट कि यार जेनेसिस ऐसे हुआ, मैं ऐसे मिला, ये प्रॉब्लम्स थी, ये मेरा एनालिसिस था, ये मेरा ऑब्जर्वेशन था, ये मेरी सोल्यूशनिंग थी और ये इम्प्लीमेंटेशन, एंड देन कमिंग 2-3 साल बाद अगर आप ये भी डाल पाए कि उसका क्या निकल के आया, अगर इस टाइप से अगर आप स्टोरीज और ब्लॉगिंग कर पाते हैं ना, तो ये आपके लिए भी एक नोट्स का काम करता है कि आपने क्या काम किया, एंड सेकंड इट हेल्प्स द रिक्रूटर टू अंडरस्टैंड योर मेंटालिटी, योर क्रिटिकल सेल्फ थिंकिंग स्किल्स एंड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम्बल रहिए, बहुत ही विनम्र रहिए। संस्कृत में श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता। स्टेज है, विद्या से पहले विनय आता है, हम्बलनेस आती है, और हम्बलनेस से योग्यता आती है। तो वो जंप मत कीजिए कि बहुत ज्यादा पढ़ लेने से बहुत ज्यादा योग्यता आती है। यू शुड बी वेरी हम्बल, यू शुड बी कनेक्टेड टू द ग्राउंड। जब तक आप ग्राउंड को नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप ये पॉइंट नहीं छोड़ेंगे कि आपकी इनसाइट से आप जानते हैं कि फील्ड पे कैसे चीजें मूव करते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो चीजें जो है वो एक एवरग्रीन स्पेस है। जितना आप हम्बल रहेंगे, जितना आप कनेक्टेड रहेंगे, जितना लोगों से मिलेंगे, आप जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जितनी डाइवर्सिटी आप गेन करेंगे, उतना ज्यादा वो आप अपने लिए डोर्स खोलेंगे कि यू कैन बी अ जैक ऑफ ऑल, मतलब मैं आपको कहीं पे भी फिट कर सकता हूँ। Right. Kriti, anything that you would like to add? Yeah, I feel, you can keep looking very simple to start with. You guys already have worked with the administration. You already have a very good, knowledge of different schemes and how the department works. ये आपका USP है, ये आपकी strength है. आपको easily, if you will keep looking for such opportunities, such jobs online, you will DevNet पे and LinkedIn पे, like you can follow big foundations, you can follow जो इम्प्लीमेंटिंग फाउंडेशन है, जैसे कि हिमांशु ने पहले भी मेंशन किया था, आप उनके पेजेस को फॉलो करिए, लिंक्डइन पे फॉलो कीजिए, और वहाँ के HR डिपार्टमेंट हमेशा हायरिंग होती ही रहती है. यू विल फाइंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर. एंड ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल भी, यू ऑब्वियसली नो अ लॉट, you are from you worked with government so closely, so they all will get lot of opportunities regarding that. Right. So in just अपने नेटवर्किंग करिए, एक्सटेंसिवली करिए, अपने नेटवर्क को यूटिलाइज करिए, लिंक्डइन को जुडिशियसली यूटिलाइज करिए, लिंक्डइन को यूज करिए टू रीच आउट टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस. जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको दिखती है वहां अप्लाई करिए, और साथ ही साथ अपने काम को डॉक्यूमेंट करने के लिए लिंक्डइन को यूज करिए. तो the next question will be the last question of the session, unfortunately, because we are running out of time. Rupal, who is yet another CM fellow. Rupal, would you like to unmute yourself and put forth your question? Hi, Apurva. I am Rupal from posted in Umaria district. My question is on the field when we see many problems, तो हमें बहुत सारे आइडियाज आते हैं कि हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट पे. आप भी CM फेलोज रहे हैं, आप भी उस लेवल से आए हैं, तो हमें कैसे प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि हम किस चीज पे काम करें? और क्योंकि बहुत सारी अच्छी चीजें हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, हम गैप्स फाइंड बहुत सारी जगह कर लेते हैं, तो हमें समझ नहीं आता है हम कहाँ काम करें. और सेकेंड मेरा क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट में अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो ये दिख रहा है कि डेटा को किस तरीके से मॉडिफाई कर दिया जाता है, मैनिपुलेट कर दिया जाता है टू बी इन द गुड बुक्स. तो उस डेटा की क्वालिटी को हम डेवलपमेंट सेक्टर में रहते हुए कैसे इंश्योर करें? तो गुड क्वेश्चन. सबसे पहले तो ये मेरे एक क्लासमेट रही है, तो इसको चीजें पता भी है, बट the point is कि मतलब आपने we I and Rupal, we both have started with the humanity organization, और हमने ग्राउंड से चीजों को कनेक्ट करके आगे तक लेके जाया. Fortunately I got a chance to work with the government prior to you, but जो मेरा एक्सपीरियंस है ऊपर, वो उसमें ये निकल के आता है. योर फर्स्ट क्वेश्चन कि हमारे पास कई सारी चीजें हैं. मैंने हमेशा एक चीज पे फोकस किया है, ट्रांसफॉर्मेशन एट स्केल. सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि मैं जो भी इनिशिएटिव पिकअप कर रहा हूँ उसकी स्केलेबिलिटी कितनी है.
है ना, उसको करने से क्या आई एम फोकसिंग मोर ऑन द वन क्लासरूम वन स्कूल, और आई हैव ऑल्टरनेटिव कि मैं डिस्ट्रिक्ट का इकोसिस्टम एजुकेशन में कुछ शेप कर सकता हूँ। सो पॉइंट है कि जब आपके पास जो जिस स्तर की पावर आपको मिली हुई है, जिस स्तर का अपॉर्चुनिटी आपको है, उस स्तर पे आप मैक्सिमम कैसे ड्राइव आउट कर सकते हैं, है ना। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं उससे 10 प्लॉट खरीद लेता हूँ, 1 करोड़ रुपए से आप एक बड़ा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो द पॉइंट इज मैनेजमेंट एक मैट्रिक्स होता है जिसमें ये बताया जाता है किन चीजों को आप करना चाहिए, मतलब जो हाई प्रॉफिट हाई गेन, मतलब मिनिमम एफर्ट्स में मैक्सिमम आउटपुट्स दे सकते हैं, स्केलेबल आउटपुट दे सकते हैं। यू शुड प्रायोरिटाइज देम। जिन पे आपके एफर्ट ज्यादा लगते हैं लेकिन कंपैरेटिवली आपको लगता है रिजल्ट कम आएगा, उस पे बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं, उस पे बहुत सारी फंडिंग भी इन्वॉल्व है, बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन का बाय इन भी इन्वॉल्व है, तो ऐसे इनिशिएटिव को आपको डेलीकेट करना चाहिए। मतलब इनके लिए केस बिल्डअप कीजिए, गवर्नमेंट को दीजिए और बोलिए कि इसके आगे कोई इंसान कर सकता है। थर्ड, कुछ ऐसी चीजों को रिजेक्ट ही कर देना चाहिए जो बहुत ज्यादा एस्पिरेशनल है। फॉर एग्जाम्पल सीएसआर से 2 साल का आपका टेन्योर है, आप ये बोल रहे हैं सीएसआर से मैं 5 करोड़ रुपए पूल इन करके एक बहुत ही अच्छा स्विमिंग पूल 5 सरकारी स्कूल्स में बना दूंगा। उसकी प्रोसेस ही होने में, उसका टेंडरिंग होने में, गवर्नमेंट जो प्रोसीडिंग है उसमें ही इतना टाइम लगेगा कि वो आपके टेन्योर होते होते तक होगा नहीं और वो खत्म हो जाएगा। सो फोकस ऑन व्हाट इज पॉसिबल। मतलब हम 3 सेक्शन में बांट सकते हैं अपने कामों को, एसेंशियल, डिजायरेबल और एस्पिरेशनल। एसेंशियल मतलब जिनके बिना तो काम ही नहीं हो रहा, है ना, और जिनके बिना तो अभी चीजें वैसे ही वर्स्ट हो जाएंगी, उनको एसेंशियल की कैटेगरी को पहन कीजिए। डिजायरेबल जो होना चाहिए, अगर एसेंशियल के होने के बाद आपको लगे कि कुछ एड ऑन है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। पढ़ाई के अतिरिक्त उसके बाद अगर अपने लगे कि हाँ इनके एक्सपोजर विजिट भी होना चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका डिजायरेबल। और एस्पिरेशनल होगा कि भाई अब हमारे जो बच्चे हैं वो इनोवेटर्स बन जाएं, गवर्नमेंट स्कूल से कुछ स्टार्टअप्स निकलने लगे, तो ये एस्पिरेशनल की कैटेगरी है। जो एसेंशियल है उस पर ज्यादा एनर्जी फोकस कीजिए, डिजायरेबल को को क्रिएट कीजिए, और एस्पिरेशनल पे अभी केवल अपनी थिंकिंग डेवलप कीजिए। दैट्स हाउ इट वर्क्स। सेकंड, गोइंग अहेड विद योर डेटा, तो आप अपने डेटा पूल को, जो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का वो चल रहा है ना, मैंने बोला हमेशा देयर आर अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ टफ कॉन्वर्सेशन, है ना, वो कभी बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही अच्छी कॉन्वर्सेशंस नहीं हो सकती। You should keep on reiterating and you should tell them कि डेटा फजिंग होने से या डेटा को सही तरीके से इस्तेमाल ना होने से अल्टीमेटली बेनिफिशियरीज को क्या चैलेंज होगा। और आप एक स्टेप, एक शॉर्टकट मारने के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म प्लेजर विल लीड यू टू द लॉन्ग टर्म पेन, ये अगर आप समझा पाए कि आप शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए गवर्नमेंट जो डेटा के साथ मूवमेंट कर रही है, दैट विल लीड टू द लॉन्ग टर्म पेन, वो कंसेप्ट आप जितना रीआइट्रेट करेंगे, उसके जितने एविडेंसेस प्रेजेंट करेंगे, धीरे धीरे वो चीजें मूव करना शुरू होंगी। एंड ऑब्वियसली फिर आपके पास तो भैया मुख्यमंत्री जी का पक्का आशीर्वाद है और AIGTPA के बहुत सारे रिसर्चर्स का साथ है, तो आई गेट जो आप बेसिक डेटा भी निकाल के ला पा रहे हैं, दैट विल डेफिनेटली बी ड्रिवन थ्रू द CMO एंड द AIGTPA। Sure, thank you. Rupal, if I understood your question right, you were actually asking कि आपको बहुत सारे ideas, solution आते हैं. When you go, when you work, you find a lot of solutions. You know, आपको लगता है हम ये भी solve, इसमें ऐसा कर देंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा. ये, that is what you are trying to do कि उसको कैसे address करें, correct? So I personally feel, जैसे कि हिमांशु ने भी mention किया आपको, कि हो सकता है कि आपको solution, so first thing is find out that is it a solution which can be sorted at your own level. If you bring it up because you're already working with administration, can you make a proper paragraph on it based on your data? अगर आपको क्योंकि problem लग रही है तो उसका कुछ data भी होगा, उसका कुछ solution भी होगा, तो आप strategically अभी ऐसी जगह पर हो, आपको वो opportunity already मेरे ख्याल से मिलती है कि आप उसको एक, so first of all sit down, write your ideas. Always whenever you get an idea, we are also social entrepreneurs. हम लोग केवल social worker नहीं है, हम लोग social entrepreneurs भी बन सकते हैं. हम किसी प्रॉब्लम का कोई सोशल सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं. एंड ऑलवेज एवरी आइडिया, आई थिंक आई ऑलवेज प्रमोट कि कोई भी आइडिया आपको आ रहा है, मे बी यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट राइट नाउ, राइट अवे, बट मे बी आफ्टर 2 years, so just write it down, what you realized, what you found, and maybe you can present it to your local CSR committee.
हर सिटी में भी एक एडमिनिस्ट्रेशन में भी CSR कमेटी होती है. अगर वो कोई ऐसा प्रॉब्लम है जो लोकली सॉल्व हो सकता है थोड़े से इनपुट से, थोड़ी सी एक्सपर्टीज से, तो वो आई थिंक यू शुड एड्रेस इट. दैट विल गिव यू अ वेरी गुड फील गुड फैक्टर ऑल्सो. नॉट दैट कर रहे हो बट कुछ हो नहीं रहा है, वैसा नहीं है. सो यू जस्ट राइट डाउन योर आइडियाज. ऑल्सो उसको आप जब लिखोगे ना तो यू विल रियलाइज कि उसमें क्या क्या चीज और लगेगी टू मेक इट हैपन. So make a plan. It's nothing wrong in making a plan. Plan your idea, propose your solution, make a proper proposal, present it to your senior, present it to local committee. Possibly it can be taken up, and that can be the solution. The second thing you asked is कि development sector, from we know कि as you mentioned कि government में लोग data गलत भर देते हैं. From development sector side हम उस data वो करते हैं, correct? That is your question? Yes. So basically there are specific agencies who do research. Research agency होती है, third party आप hire करते हो. Like in our projects, we in many project hire a third party agency जो अलग से baseline और endline हमको करके देता है. हम खुद के ही resources पे data के लिए depend नहीं करते. So that brings a lot of credibility. That is what we approach. हम किसी external agency को hire करके research करवा सकते हैं. We can do baseline, we can do baseline. उससे हमें clear हो जाएगा कि हमारा actual result क्या है. Yeah. All right, I think we've come to the conclusion of this session. I want to thank Himanshu and Kriti for taking the time and answering all our questions and sharing your experiences. Yeah, we hope to keep in touch with you. I hope all the CM fellows and our audience on YouTube has had some useful takeaway from this session. So thank you very much. Yeah, all of you, today is a Friday. I would like to, before we all leave, I would like to also thank you to give me this opportunity and also to connect me with Niket. I think Niket is there in this meeting. I recently met him and we came up with some brilliant ideas and hopefully we might work together. That will be the first time I think the fellows and the NGOs are going to come together and work. So I'm looking forward to that. Also, same here, Apurva. Thanks for inviting me. I know मैंने काफी प्रश्नों के काफी बड़े उत्तर दिए, but I know कि ये मैंने पहले भी इसलिए disclaimer दे दिया था कि CM fellow से interact करना is like a nostalgia for me, and I'm very much looking forward for this program because ये मेरी home state पे हो रहा है. एक वो sentiment भी है, and second sentiment ये है कि I've started my career, so I can see कि ये जो आपका अभी का जो fellowship का experience है ना, कि आपकी लाइफ को कैसे शेप करता है, एंड हाउ यू कैन इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ पीपल आउट देयर इन द इंडिया अक्रॉस द डिफरेंट डोमेन. हमारे बैच के जो सीएम फेलोज थे वो सारे धमाल मचाए हुए हैं. आई होप इस सीएम फेलोशिप जैसे जो प्रोग्राम होते हैं वो एक जो स्यूडो गवर्नमेंट जॉब होती है ना, कि गवर्नेंस का आपको एक इनसाइडर और एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव दिखा के स्केलेबिलिटी के लिए सोचने के लिए विवश करती है और आगे लेके जाती है. तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज टेकन माय, मैंने इसके पोस्ट में भी लिखा था कि नॉलेज शेयर्ड इज नॉलेज स्प्रेड. सो आई एम आल्सो लुकिंग फॉरवर्ड सम प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमने तो काफी कुछ बोल दिया, बट वी वुड लाइक टू hear from the different experiences of CM fellows and how they are creating a lots of impact. I'm always reachable on LinkedIn. 3 लोगों का भी रिक्वेस्ट आया, तीनों को एक्सेप्ट भी कर लिया, so 3 CM fellows से भी जान पहचान भी हो गई है. And thank you so much Apurva, it's a brilliant idea that you have came up with. एंड इस प्रकार के डायलॉग सीरीज से ही हम काम के साथ साथ वो एक ज़ील, एक मोटिवेशन, वो जो स्पार्क है वो अलग रख सकते हैं. सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू एंड द टीम. थैंक्स एंड थैंक्स. लवली टू इंटरेक्ट विद Kriti also. Again, networking, networking is key. So yeah, thank you so much again. Very prompt, Himanshu, thank you for accepting those LinkedIn requests. And yeah, everybody have a good weekend, take care. As Himanshu and Kriti mentioned, they are reachable on LinkedIn. Reach out to them, learn more about their organizations.
they could be your future employers. We never know. All right. But take care, everyone. Have a great weekend. Bye bye. Happy Navratri, happy Dashera. Bye. Yes, Bye. happy Happy Navratri, Dashera. happy Dashera. Bye.